है इस प्रेस वार्ता में। जैसा कि मयूर जी ने बताया कि ये वार्ता जो है, जो घटना घटी है बंगाल में, जो पूरी जनता देख रही है, बंगाल की जनता, जो वहां का एक सपना था बंगाल की जनता का कि एक सोनार बंगला देखने का, लेकिन आज बंगाल की जनता रो रही है इसलिए कि एक लाचार बंगला देख रही है, जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और जो डेमोक्रेसी जिसकी बात करती है ममता बनर्जी देश प्रदेश के बाहर पूरे देश में घूम घूम के, लेकिन वहां एक तानाशाही अपनी पराकाष्ठा पे है। आज हम आपके सामने दो चार बातें रखना चाहता हूं। जिस तरह से अभिषेक, जो उनके भतीजे हैं ममता बनर्जी के, टारगेट करते हुए कहा है, किसके बारे में कहा है कि गोली सर पे मार देते, वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो पार्टी की बात है वो उसको जाके रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जैसे 30 लोगों को अभी एडमिट है, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को, एक आम जनता को जिस तरह से दबाया गया, वो सब कुछ ममता बनर्जी जो है वो पॉलिटिकल वायलेंस से दबाना चाहती है। और इसी तरह से कल आपने देखा होगा किस तरह से बर्बरता से वहां की पुलिस, जिसको फुट सोल्जर्स कहते हैं, वो पुलिस जो वहां के जो फुट सोल्जर्स है ममता बनर्जी के, वो पुलिस है जिसको पूरा प्रोटेक्शन है ममता बनर्जी की तरफ से, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, और उन लोगों ने जिस बेरहमी से लहूलुहान किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, किसी को भी नहीं बख्शा। चाहे महिला सांसद हो, आपने देखा हमारी महिला सांसद लॉकेट चैटर्जी के साथ, हमारे पूर्व सांसद जो है उनके साथ किस तरह से अत्याचार किया। लेकिन इनको समझना पड़ेगा, ये भारत है, संविधान से चलता है। वो जिस तरह की भाषाओं का जो उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरह से बल का प्रयोग किया, ये देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। डिक्टेटरशिप का उनको हिसाब देना पड़ेगा। जनता वहां देख रही है, जो सोनार बंगला देखना चाहती थी वो लाचार बंगला देख रही है। इसी के बारे में कुछ बातें जो है हमारे मित्र डॉक्टर अनिल पाल गांगुली जी भी रखेंगे। এখানে ভিডিওতে পরিষ্কারভাবে ফুটেজগুলোতে দেখা গেল যে এই ছবিগুলো, সেইখানে ফুটেজ আছে এই ছবিগুলো, এবং একাধিক জায়গায় আমরা দেখছি যে পুলিশ যারা, তারা পাথর ফেলছে, ঢিল ফেলছে। অর্থাৎ প্রথম কথাটা হলো যে কোন পুলিশের ম্যানুয়ালে লেখা আছে যে কোনো ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ সভা বা প্রতিবাদ মিছিলকে ঢিল মেরে বন্ধ করার চেষ্টা। এবং এটা কালকে দেখা গেছে, 13 তারিখ দেখা গেছে যে আনপ্রোভোকড লাঠিচার্জ, এবং বিশেষ করে এমজি রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড এবং কলেজ স্কোয়ার থেকে যে মিছিল আসছিল ভারতীয় জনতা পার্টির, সেই মিছিলে আনপ্রোভোকড লাঠিচার্জ এবং সেখানে ঢিল ছোড়া, এবং একাধিক বাড়ির ছাদ থেকে, এমজি রোডের চারপাশে যে বাড়ি, একাধিক বাড়ির ছাদ থেকে খালি মদের বোতল, কাঁচ, এই সব জাতীয় সব জিনিস ফেলা হয়েছে যারা মিছিল, যারা আন্দোলনকারী তাদের উপর উদ্দেশ্য করে, এবং সেখানে একেবারে ছত্রভঙ্গ হলো। একাধিক জায়গায় আমি নিজে সাক্ষী, এবং সেই ছবিও দেখানো হয়েছে যে 6 জন, কোনো মহিলা পুলিশ ছিল না। আজকে মহিলা পুলিশ কি করতে পারে না করতে পারে সেই নিয়ে খুব হাসি ঠাট্টা টিটকিরি করছে তৃণমূল কংগ্রেস, কিন্তু প্রকাশ্যে দেখা গেছে সেদিনকে পুলিশ, কোনো মহিলা পুলিশ চত্বরে নেই, 6 জন মিলে একজন মহিলা কর্মীকে বেধড়ক লাঠি দিয়ে প্রহার করছে, এবং একটা জায়গায় না একাধিক জায়গায় এই জিনিস হয়েছে। এবং কথাটা হলো যে পুলিশ, আগেও দেখা গেছে যে পুলিশ যখন লাঠিচার্জ করেছে, পুলিশের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশের উর্দি পরা তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডার। সেই জন্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে খুব সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে একটি অরাজকতা সৃষ্টি হয়, অরাজকতা ছড়িয়ে যায় এবং একটি হাতাহাতি হয়। এবং তার জন্যে, কেন না হলে খালি
মদের বোতল, কাঁচ, ঢিল, এ তো কোনো পুলিশ ব্যবহার করে না। ঢিলগুলো এলো কোত্থেকে? এবং সেই জন্য আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কোন ম্যানুয়ালে রয়েছে যে কোনো প্রতিবাদ সভা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ডাকা প্রতিবাদ সভাকে ঢিল মেরে, কাঁচ মেরে, কাঁচের বোতল মেরে, মদের বোতল মেরে সেটাকে একেবারে ডিসিপেট করতে হয়। এই একটা বিষয়। অনেক বিষয় রয়েছে। কালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং তার ভাইপো মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ডায়মন্ড হারবারের অভিষেক ব্যানার্জি, যিনি দিনের পর দিন একটি এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অথরিটি হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, যাকে শাসনতন্ত্রে পশ্চিমবাংলার আজকে শাসন ব্যবস্থায় সবাই যাকে রিপোর্টিং করছে, যে বিভিন্ন পলিসি ডিসিশন নিচ্ছে, একটি এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অথরিটি উইদাউট এনি পজিশন ইন দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট, এদের দুজনের মধ্যে গতকাল প্রেস কনফারেন্সে অন্তত 30 বার গুলি চালানো গুলি চালানো গুলি চালানো কথাটা নিজেদের মধ্যে, একজন ইলেক্টেড চিফ মিনিস্টার এবং তার দলের একজন নেতা যে তার ভাইপো একজন ইলেক্টেড মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, এদের দুজনের মধ্যে অন্তত 30 বার গুলি চালানো কথাটা ব্যবহার হয়েছে। কাদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর কথা তারা বলেছে? তারা বলেছে তাদের বিরুদ্ধে যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে গণতান্ত্রিকভাবে একটি পলিটিক্যাল প্রোটেস্টের অংশীদার, তারা হলে তাদেরকে গুলি মেরে দিত। এবং অভিষেক ব্যানার্জি জেস্টিকুলেট করে, মানে নজিরবিহীন, অন্তত 30 বছর নজিরবিহীন পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে কোনো একজন ইলেক্টেড মেম্বার অফ পার্লামেন্ট শাসক দলের নেতা জেস্টিকুলেট করে বলেছে এইরকম গুলি মেরে দেব, গুলি গুলি, অর্থাৎ খুলিতে মাথায় গুলি করে দেব। কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে 6 মাসের মধ্যে নতুন তৃণমূল কংগ্রেস দেখা যাবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে নতুন তৃণমূল কংগ্রেস কি ধরনের তৃণমূল কংগ্রেস। একটি ফ্যাসিস্ট দল, ফাঁসিবাদী মানসিকতা, একেবারে এমন মানসিকতা যে গণতন্ত্র, ভারতের সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে কোন রকম বিশ্বাস এবং আস্থা নেই। এবং অভিষেক ব্যানার্জির এই যে জেস্চার গুলি করে দেবো গুলি করে দেব, মনে করিয়ে দিল পলপট। পলপট ছিলেন একজন ডিক্টেটর, যে তারই দেশের প্রায় 30 লক্ষ মানুষকে মাথায় গুলি করে সেই মাথার খুলির পাহাড় তৈরি করতেন। এ ছিল পলপট। এবং নতুন প্রজন্মের পলপট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এর জবাব মানুষ দেবে। মানুষের জবাব যথাসময়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ দেবে। আমাদের গণতান্ত্রিক সংঘর্ষ জারি থাকবে। এবং এখানে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে জুন মাসে যখন জাতীয় সড়ক নবান্ন 24 তলা থেকে দেখা যাচ্ছিল, সেই জাতীয় সড়ক যখন জুন মাসে 16 ঘন্টা ধরে জাতীয় সড়ক আটকে রাখা হলো এবং জাতীয় সড়কের চারপাশে পাঁচলা থেকে উলুবেড়িয়া বিস্তীর্ণ এলাকা, হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা ধরে তাণ্ডব চালানো হলো, বিভিন্ন দোকানপাট লুট হলো, জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, ভারতীয় জনতা পার্টির উলুবেড়িয়ার সাংগঠনিক কার্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, বেতুয়া দৌড়িতে একের পর এক দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, বেলডাঙাতে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সেখানে লুটপাট হলো। কালিয়াচকে যখন পুলিশ স্টেশন জ্বলল 2016 সালে, তখন তো কারুর মনে হয়নি যে গুলি গুলি গুলি, তখন কারুর মনে হয়নি নাকি এই গুলিটা শুধুমাত্র একটি দল এবং তার কর্মীদের জন্য রিজার্ভড? এই প্রশ্নগুলো থেকে যাচ্ছে এবং একেবারে অগণতান্ত্রিক, ডিক্টেটোরিয়াল, ফ্যাসিস্ট মেন্টালিটি। আগে বলেছি, প্রকাশ্যে কালকে অভিষেক ব্যানার্জির বক্তব্যে এবং মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবাংলার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে অসহিষ্ণু ফ্যাসিবাদী মানসিকতা কালকে প্রকাশ্যে এলো। হিন্দি में बोलना जी, तो एक है कि हिंदी में पहले बोलो। हाँ जी, कल जो हमने अभी दिखाया है कि ये तो प्रश्न हमको पूछना ही चाहिए कि पुलिस के कौन से मैनुअल में है कि आप पुलिस भी पथराव करके एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट
मीटिंग को भंग करेंगे, ये कौन से मैनुअल में है, ये हम पूछना चाहते हैं पुलिस को। पश्चिम बंगाल के जो पुलिस है, पुलिस तंत्र है, संपूर्ण तरीके से एकदम राजनीतिकरण हुआ है इनका। न सिर्फ पथराव, पुलिस, पश्चिम बंगाल के पुलिस आकर भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है, वो ऑफिस में आकर भी कार्यकर्ताओं को वहां पीटा इस प्रोसेशन के बाद। और कई इंटरसेक्शन में, सौमित्र जी बताएंगे, कई इंटरसेक्शन में ऐसा भी हुआ है कि छत से पत्थर फेंका गया, छत से दारू का जो खाली बोतलें हैं, कांच है, ये भी फेंका गया है लोगों के ऊपर जो वहां चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो ये तो प्रश्न है कि पुलिस को किसने ये इंस्ट्रक्शन दिया, पुलिस किसके इंस्ट्रक्शन पे ये काम कर रहा था। अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू किया, न सिर्फ महिलाओं के ऊपर, पुरुष पुलिस, 6 पुरुष पुलिस एक महिला को पकड़ के लाठी से पीट रहे थे, ये भी लोगों ने देखा है कल। और कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी आपस में, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस को संबोधित किया और आपस में कम से कम 30 बार इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, गोली मारना, गोली मारना, गोली मारना। और अभिषेक बैनर्जी ने कहा अगर वो होते तो वो सिर पे गोली मारते। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया। एक तो है एक्सट्रीमली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेटिक, बोलने से भी बहुत कम बोला जाता है। फैसीवादी मानसिकता है इन लोगों का संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है और असहिष्णु टू द पावर इन्फिनिट है ये लोग कोई भी डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि बंगाल के जो बुद्धिजीवी हैं, यहां सारे दिल्ली में बैठे जो आंदोलनजीवी हैं, जो सारे एक एक बात के ऊपर चिट्ठी लिखते हैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सब लोगों को, पिछले 24 घंटा एक भी इसका विरोध नहीं किया इस बयान का। एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है अगर मैं होता तो मैं गोली मार देता, सिर पे गोली मार देता। तो यही दिखाता है कि पश्चिम बंगाल का हालत क्या है। जनता इसका जवाब देगा। हमारा जो संघर्ष है, गणतांत्रिक संघर्ष, राजनीतिक रूप से जारी रहेगा और इसका अंत हम देखेंगे। पर यह प्रश्न भी मैं यहां पूछना चाहता हूं कि जब इस साल जून में करीब 10 दिन पश्चिम बंगाल जला, हावड़ा जला, नदिया जला, मुर्शिदाबाद जला, आम लोगों का दुकानें जला दिया गया, आगजनी किया गया, पथराव किया गया और एकदम से वहां नेशनल हाईवे 16 घंटा तक ये लोग बंद किए थे, तब किसी को याद नहीं आया कि क्या एक्शन लेना चाहिए। तब अभिषेक बैनर्जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। कालिया चौक, आप लोगों को याद होगा कि एक विशाल मॉब कालिया चौक में 2016 में पुलिस स्टेशन को अटैक करके, ये सारे तस्वीरें ऑनलाइन अवेलेबल अभी भी हैं, पुलिस स्टेशन को अटैक करके कंप्लीटली पुलिस स्टेशन को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब अभिषेक बैनर्जी कहां थे? तब तो उनको नहीं लगा कि ऐसा करना चाहिए। या तो ये सिर पे गोली मारना पश्चिम बंगाल में ओनली रिजर्व्ड फॉर बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी एज अ पार्टी एंड बीजेपी मेंबर्स या बीजेपी समर्थकों के लिए। ये है पश्चिम बंगाल का परिस्थिति। इसलिए हम लोगों ने ये विषय यहां उठाया और मैं बाकी जो अभी लीडरशिप, अंडरग्राउंड माफिया जो कहते हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय काम बोल दिया। अभिषेक बंदोपाध्याय इज ए अंडरग्राउंड माफिया विथ कोल स्कैम, विथ काउ स्मगलिंग, सब कुछ लेके, इसलिए वो बोल रहा था गोली मारो। गोली किसको मारो भाई? पब्लिक को गोली मारो, पूरा युवा को गोली मारो। क्योंकि 13 तारीख हम लोग का सुकंत मजूमदार और शुभेंद्र दा का नेतृत्व में हम लोग जो नवान्न चलो अभियान चल रहा था, उसका पहला दिन, उसका रात को पुलिस ऑफिसर जाके युवा को पिटाया। हम लोग यही चाहते हैं भाई, तुम्हारा एसएससी स्कैम हो रहा है, तुम्हारा कोल स्कैम हो रहा है, तुम्हारा काउ स्मगलिंग हो रहा है, तो वहां पे युवा रास्ते में उतरेगा नहीं तो कौन उतरेगा? तो ममता बनर्जी को पहले हम चाहते हैं
जो 1993 में 21 जुलाई 21 जुलाई पहले ममता बनर्जी के कारण में 13 युवा कांग्रेस का शहीद हुआ था, तो पहले ममता बनर्जी इस्तीफा दे दो। उसके बाद रिजाइनर जो घटना घटी थी उसके लिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि उस दिन कोलकाता में बहुत सारे बास चला। फिर भी उसके बाद 2006 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ किया, उसके लिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए था। मैं अभिषेक बनर्जी को बोलना चाहता हूं, जब हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल का जनता जाप माफिया है, उसलिए आप दुबई जाते हैं, उसलिए आप बार बार नेपाल जाते हैं, आप गैंगटॉक जाते हैं अंडरग्राउंड के साथ एडजस्ट करने के लिए, पूरा भारत को तोड़ने के लिए। लेकिन आप गोली मारो बोल के पुलिस को बोल रहे हैं आप गोली मारो। अरे पुलिस तो आपका तृणमूल कांग्रेस को काल आपको पूरा भारत को जानना चाहिए। पूरा टीएमसी जितने सारे केडर थे 1000 केडर को काल टीएमसी केडर को पुलिस ने पुलिस ड्रेस दे दिए थे बीजेपी कार्यकर्ता को अत्याचार करने के लिए। एमजी रोड से हमारा लीडर होनीबंदा और हमारा जबर जी ने कहा है, जो एमजी रोड हावड़ा में ऊपर से दारू का बोतल फेंक किया। हावड़ा में मैंने था 17 गची में। अरे भाई कभी देखा है नेशनल हाईवे का ऊपर जेसीबी चला के उसको तोड़ फोड़ करके स्टील लगाने के लिए? जैसे हम लोग टेररिस्ट है, पुलिस बोल रहा है भाई भारतीय जनता पार्टी का टेररिस्ट जुबान है, ये क्या बात है? तो आज जो घटना घटी, तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु दा के ऊपर और सुकांत दा के ऊपर अटैक करने वाले थे, उसलिए महिला देखे वो बोल रहा था, महिला देखे कुछ घटना घटने के लिए वो तैयार कर रहा था, लेकिन हम लोग को पता चल गया था। इसलिए अंडर माफिया अभिषेक बंदोपाध्याय ही इज द मोस्ट अंडर माफिया लीडर है, उसलिए दुबई जाते हैं। वो चाहते हैं पूरा बंगाल को खत्म करने के लिए, जो ममता बनर्जी 10 साल में हमारा पूरा बंगाल को पीछे कर दिया। एसएससी जो एग्जाम था वो भी पीछे कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, पूरा भारत का मिलती है। चलिए रास्ता नमिए, ममता बनर्जी का 100% झूठे बात बोलती है। Minister, and when we tried to confront him, he stayed on his point. He said that yes, we will do it. We'll hit back at the BJP. How do you respond to these statements that have been made by none other than somebody who is at a post with a minister over there in West Bengal government? No, I think that's basically their training. I mean, they are made ministers because they can speak in that way in West Bengal. The point is, on 2nd May, even without anyone hitting them, they killed, maimed, hit our workers. So they don't need an excuse. They just go out and hit. That's the training that they have. And 13th September was one more day when we saw what they could do. So it's nothing new. It's their mindset. And as I said, that mindset came out very clearly yesterday when their second supreme leader said that he would shoot people in the head. নিশ্চয়ই সিআইডি 3 বছর 2 বছর ধরে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, এখন হঠাৎ তাদের জিতেন্দ্র তিওয়ারি, শুভেন্দু অধিকারীর কথা মনে পড়েছে। এটা ওরা ভিক্টিমাইজেশন করছে এবং এটা খুব সুপরিকল্পিতভাবে ভিক্টিমাইজেশন করছে যাতে একটি ভয়ের আবহাওয়া তৈরি হোক। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ তো দেখেছে কার বাড়ি থেকে কত ট্রাঙ্ক বেরোলো, কার বাড়ি থেকে কত বস্তা বেরিয়েছে, এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ আস্তে আস্তে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে ওদের। ওই জন্য সিআইডি দিয়ে ধমকানো চমকানো এইসব আর কাজ দেবে না। না, এলাকার লোক তো অনেকের এলাকায় অনেকে থাকতে পারে, তো তারা ইনভেস্টিগেশন করুক না, আমরা তো বলছি ইনভেস্টিগেশন করুক। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো যে পুলিশের মধ্যে তৃণমূলের ক্যাডার কতজন ঢুকে গেছিল এবং তাদের কি ইনস্ট্রাকশন ছিল। এবং আজকে না, এটা আমরা বরাবর দেখেছি, যতবার বিজেপি প্রতিবাদ করেছে ততবার পুলিশের মধ্যে টিএমসির ক্যাডার, টিএমসির লুম্পেনরা, ক্যাডার তো বলা সেই পার্টিকেই বলা যায় যারা একটি অর্গানাইজড গঠিত পার্টি, এটা তো একটি লুম্পেন দল। এই লুম্পেন টিএমসির লুম্পেনরা পুলিশের উর্দি পরে, পুলিশের লাঠি নিয়ে, পুলিশের র্যাঙ্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা পাথরবাজি করেছে। এবং কাল 13 তারিখেও সেটা কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।
13 তারিখেও সেই জিনিস হয়েছে, সাঁতরাগাছিতে হয়েছে, কলেজ স্কোয়ার থেকে এমজি রোডে তো হয়েইছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিস হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হলো ওরা ইনভেস্টিগেশন করুক না, কিন্তু আমাদের পাল্টা প্রশ্ন এটাও যে কজন ক্যাডার, কজন লুম্পেনদেরকে তারা পুলিশের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেদিনকে। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এবং এটা হলো ইঙ্গিত, এটা হলো একটি মানে হিটলেরিয়ান স্ট্যালিনিস্ট ওয়ার্নিং তারা বিজেপিকে দিচ্ছে যে আগামী দিনে তোমরা যদি ভাবো যে কলকাতার পথে ঘাটে আবার আন্দোলনে নামবে, তোমাদেরকে এই করা হবে, মাথায় গুলি করা হবে। সেই জন্য বলেছি ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ হিটলার, স্ট্যালিন, হিমলার এবং পলপট। আজকে পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্য এই যে একটি নির্বাচিত সরকারের জনপ্রতিনিধিরা এই রকম ভাষা প্রয়োগ করছে, এবং বুদ্ধিজীবীরা, সকল পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা যারা একসময় স্টেজে দাঁড়িয়ে ক্যা ক্যা ছি ছি করেছিল, তারা চুপ করে আছে। কোথায় গেল যোগেন চৌধুরী, কোথায় গেলেন সুবোধ সরকার, কোথায় গেলেন অপর্ণা সেন? তারা তো সব চুপ করে আছে। 24 ঘন্টা অতিক্রম হয়ে গেল, তাদের তো কোনো প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে না যে মাথায় গুলি করে, কিংবা তারাও মানে যে হ্যাঁ বিজেপির লোকেরা হলে তাদের মাথায় গুলি করতে হবে। इसमें भी सरकार के कनेक्शंस देखते हैं। हाँ हाँ, देखिए डायमंड हार्बर में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका तो ताल्लुकात किनके साथ है हम जानते ही हैं, क्योंकि डायमंड हार्बर के एकदम नायक जो हैं वो डायमंड हार्बर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था डायमंड हार्बर मॉडल, सबको अब इच्छा होता है कि गुजरात मॉडल जैसा हम भी अपना मॉडल बनाएंगे। तो ये डायमंड हार्बर मॉडल दिखाए लोगों को कि एकदम ये है ड्रग ट्रैफिकिंग का मॉडल है, ये वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मॉडल है जो कि विरोधियों को गोली से मार दिया जाता है। तो यही डायमंड हार्बर मॉडल है जो पश्चिम बंगाल के नियति में अब दिखता है।